Hi everyone. I'm really sorry. I apologize for the delay. I was at a place where the network was not available at all, so I had to come to a friend's place and use his Wi-Fi. So, can you all hear me? If somebody could just write it down in the comment section that I'm audible, then we'll start the session. Am I audible to you? Uh, am I audible? Can somebody please write it down in the comment section if I'm audible so that I get a clue and then we'll start. Okay. Good evening, very much. Good evening to all of you. And I'm really sorry that this session got delayed. Um, so I had to come to my friend's place and use his Wi-Fi. All right. So this session is primarily going to be, this is 6:20 and we'll precisely keep it within an hour. And so that we sticking to the timeline is very important. Like, you all are going to write mains at one point of time, and we all must understand that whatever we start we have to finish it within time. So we'll keep it within an hour. And मैं बीच में हिंदी बीच में English, that I'll keep doing. I cannot go completely Hindi because a lot of students are from South India also, and I cannot go completely to Hindi either for the same reason. The topics for today's session is primarily going to be the ones that you have asked me to take, right? You have dropped me several messages. So there are primarily topics like how to start for preparation if we are in job or if we are in college, at various years, whether it is first year, second year, third year, fourth year, how to prepare then how to plan the coming months before prelims, about elimination techniques in prelims, about CSAT, about various sources in different subjects, and methodologies, and how to make notes, very important. And then topics of a certain lighter vein, like नींद आती है तो कैसे handle करें, motivation कैसे मिलता है, how to keep going, right? So on and so forth, and we'll take the topics one by one. All right. And end में अगर time बचता है तो I'll just take your queries. You can just write it down over here, right? All the sources, books, etc. We'll just start. So first of all, for students who are entirely new into this field and who are just starting preparation, for them I would suggest first thing you guys should do is download the syllabus and see what is asked in the exam. All right. So in prelims and in mains, you have to understand what are the subjects first of all that you have to study, because you just can't start studying directly and then realize midway that this is something you can't do. So you have to first of all go through the syllabus. That is very important. Okay. Secondly, then you go through previous year papers of both prelims and mains, so that again you know that what is the level and what is the depth of various subjects that you have to study, right? So that is how you start as a fresher, as a beginner. So people keep asking me, sir, start kaise kare? This is the first thing that you have to do. Then पढ़ाई में the basic source is your NCERT, like for the start. Now NCERT is not the only source. There are other sources as well, but that is like the fundamental, that is the foundation. उसके बिना बाकी सोर्सेज पे जाओगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ऐसा लगेगा कुछ फाउंडेशन मिस हो रहा है. तो इसलिए स्टार्ट तो एनसीईआरटी से ही करना है, ठीक है, हर सब्जेक्ट में. अब वो क्या है वो आई टेल यू व्हेन वी विल टॉक अबाउट सोर्सेज, बट स्टार्ट एनसीईआरटी से करना है एंड न्यूज़पेपर से करना है. सो व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑनेस्टली, like I was in college and this was 2013 or 14, and my general knowledge was so poor that I used to think that there are only two political parties in the country. One is BJP, the other is Congress. That was my level of knowledge regarding politics in our country, and so it was horrible. I had to start from scratch. But that's all right. You can cover it up very, very quickly. Once you start reading the NCERTs, you make your foundation, and then you run very fast because the concepts are explained to you very easily in a very simple format.
So, all right, so cool. So you start with NCERTs and newspapers. For newspaper, I'll talk in detail how to take notes of newspaper, which notes, and how to read it. But for now, just know this, that you have to read one newspaper, like in detail, right? Like properly. How what is proper, I'll tell you when we'll talk about newspaper. But just read one, not more than that, and it should be very quick. You don't have to spend 2-3 hours in just one newspaper, and this one newspaper has to be standard newspaper. I personally would recommend you either the Hindu or the Indian Express. Either of them is fine, and of both these newspapers there are pros and cons. IR has a very good coverage of Indian Express has a very good coverage of IR, which is international relations and environment, all right, and art and culture. On the other hand, your Hindu has a good coverage of governance issues, right, of which falls in paper 2, and your economic issues. So, but the downside of Indian Express is that it is also a very lengthy newspaper. So it is safe if you could stick to the Hindu. If it's not available in your city, then you can go for Indian Express. All right. Now let's start with the sources. All right. Very quickly, I'll go through them, all the sources, and also let me just tell you that I'm going to take names of certain coaching centers, of their magazines, and I'm not really endorsing them, and I'm just telling you things that I did myself, so it is going to be useful to you as well. So it's not that anybody has paid me for doing this, so I'm just telling you very honestly what I did. So for sources, let's start with geography. So in geography, your NCERT, there are two basic NCERTs. One is Indian geography and then one is physical geography. You have to do these two books like by heart, because these books are they are so good. They're so good because direct questions come from these two books. If you know them, if you've done them properly, including the figures and the diagrams, you're gonna sail through it. Okay, ज्योग्राफी में से कोई सवाल नहीं बचेगा अगर ये ढंग से कर लिया तो, बट तो इसलिए ये तो ढंग से करना ही है. एंड देयर इज अनदर बुक कॉल्ड जीसी लियोंग, जिसमें आधी जीसी लियोंग इज सेम एज योर एनसीईआरटी. The remaining half part of the GC Leong is climate, and that is not available in NCERT. So that you have to do from Leong. ऑलराइट, ये आपका ज्योग्राफी से हट गया. इसके अलावा आप एटलस यूज़ करके उसमें मैपिंग कर सकते हो, रिवर्स की, लेक्स की, वर्ल्ड मैप में मेजर माउंटेन रेंजेस की, और आपकी जो लोकल विंड्स होती हैं वो हरमैटन, राइट, सिरोको, बोरा, सो एंड सो फोर्थ. ठीक है, वो सब कर लेना आपने. वो एनसीईआरटीज़ में दे रखी हैं, जस्ट मैप देम इन अ वर्ल्ड मैप सो दैट यू नो. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डू इज, सीधी चीज़ बता रहा हूँ जिससे सवाल आते हैं प्रीलिम्स में. कोई न्यूज़ अगर चल रही है, अभी आईएस ने कहीं अटैक किया है वर्ल्ड में, या फिर कोई पर्टिकुलर मीटिंग हुई, लेट्स से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, या यूनेस्को का नया जो मीट होता है वो कहीं पे हुआ, ऑल दीज मीटिंग्स, ये जो लोकेशंस जो न्यूज़ में रहती है ना, उनको मैप में आप मार्क कर लीजिए, एंड यू नो उनके आसपास के फिजिकल फीचर्स, क्योंकि उस पर सवाल आजकल बहुत आ रहे हैं. राइट, मेडिटेरेनियन वाला जो एरिया है उसको ढंग से मैप कर लेना. द एरिया अराउंड मेडिटेरेनियन यू शुड डू दैट प्रॉपरली. द वेस्ट एशियन रीजन दैट यू शुड डू, साउथ एशियन रीजन दैट यू शुड डू. ऑलराइट, तो वो आप कर लीजिएगा. ठीक है, ज्योग्राफी आपका हो गया. देन योर हिस्ट्री के अंदर देर आर 3 ओल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटीज. फॉर दोज हु डू नॉट हैव ओल्ड वंस, you and if you cannot go to the bookstores and buy them in Delhi, then you can simply call these bookstore owners and they will post the book to your home. Okay, they do it now. So there are 3 books, I think. RS Sharma, RS Agarwal एक है, और एक है बिपिन चंद्रा, और एक रमेश चंद्रा. नहीं, बिपिन चंद्रा, रमेश सिंह एंड क्या, आई एम मेसिंग इट अप. ठीक है, बट देख लेना, वो 3 एनसीईआरटीज हैं, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न की, पुरानी वाली. ठीक है, दैट यू हैव टू डू दोज 3 एनसीईआरटीज. ऑलराइट, वो 3 एनसीईआरटी हो जाएंगी. जो एंशिएंट वाली है उसमें आपका पार्टली आर्ट एंड कल्चर भी हो जाएगा. फॉर आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिकली यू ऑल्सो हैव द फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी, जो रेड कलर की बुक है, वो भी आप कर लीजिएगा. ठीक है, एंड देन देर इज अनदर बुक कॉल्ड नितिन सिंघानिया, विच आई हैव पर्सनली नॉट डन, बट उसमें से सवाल आते हैं. तो बट देन देर आर सर्टेन, यू मस्ट नो व्हाट टू रियली रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड. जो चीज़ें एनसीईआरटीज़ में हैं वो आप मत पढ़िए उसमें से, बट उसके अलावा जो आपका वो है
टेम्पल्स हैं, क्रोनोलॉजिकली कब कौन सा कहाँ बना, किसने बनवाया, वो सब आप एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए, राइट। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके लिए स्पेक्ट्रम है, तो आपको एक बार बिपिन चंद्रा पढ़नी पड़ेगी फॉर वन, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द होल इवेंट्स एज दे हैपेंड। एंड देन एक बार बिपिन चंद्रा पढ़ लोगे, उसके बाद रिवीजन के लिए स्पेक्ट्रम यूज़ करो, जस्ट फॉर रिवीजन। For revision, you cannot use Bipin Chandra because it's a novel, it's a very thick book. So for that, you have to use Spectrum. Alright? Notes नहीं बनाने हैं किसी NCERT के, I would suggest केवल वो चीज़ के नोट बनाओ एक दो लाइन के जो याद ही नहीं हुई बार बार रटने के बाद। उसके बाद भी अगर याद नहीं हो तो उसका नोट लिख लो कहीं पे कि भाई दुआर क्या होता है, दून क्या होता है, करेवास क्या होते हैं, या आपके मॉडर्न हिस्ट्री में प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक जगह लिख लिए कहीं पे, ऑगस्ट ऑफर के प्रोविजंस क्या थे वो कहीं पे लिख लिए, क्रिप्स मिशन में क्या थे वो कहीं लिख लिए, राइट। सो बस जस्ट मेक नोट्स ऑफ दैट, डोंट मेक द नोट्स ऑफ एंटायर चैप्टर्स ऑफ और एंटायर बुक, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू जस्ट यूज अ हाईलाइटर, डू इट ऑन योर बुक एंड देन build the practice to revise directly from it. Okay, and see, realize this is not the end. You have to write mains also, and in mains things might not directly come from NCERTs. NCERT is for your own conceptual clarity, so that you can use the content of NCERT to create a wholesome answer. So you have to study more than that. So just don't spend all your time reading and revising NCERTs. Just do it once, use highlighter, revise it, and move forward. All right. Now, yeah, for those who are continuously commenting, I'll save the session, don't worry about it. I'll mostly speak in English, it's all right. And regarding how to prepare along with the BTech and job, I will also talk about that. Okay, cool. So okay, let's just move on to polity now. For polity, you have to do Lakshmikant, as simple as that, nothing more than that. Just do it 4 times, 5 times, because direct questions come, so just keep revising it. All right, and again just make notes of those things which despite multiple revisions you are unable to memorize and recollect. So a lot of people keep asking me Lakshmikant ke notes kaise banaya, how to, so it's a big book, how to cover all of that in notes. You don't have to make the notes of the entire book, just make notes of that area which is really again and again you can't memorize. Then is your economics. In economics, so again I'm going to take the name of a coaching center, not endorsing, just something which was useful to me, might as well be of use to you. Shri Ram coaching की economics की एक manual आती है, you can do that. Okay, that is like for the basics of economics, for example poverty, banking, taxation, inflation, etc. वो आप उसमें से कर लीजिए. And then you have to do your economic survey and your budget, which comes every year in February. That you cannot miss because direct questions will be asked in prelims. It will be useful for you in mains as well, and of course in interview. So all right, so that is economics. History done, geography done, polity done, economics done. The standard part is mostly done. What is remaining? Right, in history, in mains there is also world history. So for world history, you don't buy that book called Norman Low or Arjun Dev. You just go on and purchase a special edition of any magazine which covers world history. So there is Chronicle, which comes out with a special edition of world history. You can do that. Or there's Pratyogata Darpan. They keep coming out with special editions in which they cover one area. Like they would cover economics, sometimes they would cover polity, sometimes they would cover your world history. So you can do it from that. Somebody is suggesting, what about Murnal? Yeah, if it is available in Murnal, you can do it from that as well. But again, whatever you choose, whether Murnal or a magazine or a coaching material, just try and stick to that which consumes the least time, because the syllabus is huge and you also have to practice in tests. All right, so whichever takes the least time, you select that as per your own wisdom. Okay. Then we have some dynamic part remaining, which includes environment, science tech, disaster management, defense, more or less, and IR, international relations. Now there are no specific books for these. For environment, there is a book called Shankar IAS ki publication, but I will not suggest that personally because I read it and I found a lot of mistakes in it, so I would not suggest it.
honestly, I have not studied any book formally for environment. I did it from NIOS, and rest from the current affairs part, I did it from the various magazines. I personally chose Vision IAS magazines, so the current affair part of environment, I did it from that. But and there's another book which has come out recently. The author is somebody who goes by the name Ravi Agrahari. He's a teacher himself, and he also teaches, I think, economy, environment and ecology. And this particular book is, I think there are not much books available in market apart from Shankar and this one. So I'm gonna read this one and put the review pretty soon. So if you can check this book out, it's updated and it has a lot of the coverage is really good. Ravi Agrahari sir, environment and ecology. Okay. Cool. Apart from that, you have to cover it from your current affairs, and you can do a mapping session on environment as well. Like what you can do is take out the atlas, and with a little bit of internet searches, you can exactly of each and every state, what are the critically endangered species, what are the endangered species, what are the vulnerable species, right? And what's the state animal, state bird, etc. Which wildlife sanctuary is present where, right? Just do this exercise. It will take 2-3 hours. Just do this exercise on a map for each and every state. It's going to be very useful to you. Okay. या बुक रिव्यू मैं बता दूंगा आपको डाल के, ठीक है. आई एम करेंटली रीडिंग द बुक. देन साइंस टेक के लिए अगेन यू हैव टू डू करंट अफेयर्स. देयर इज नो पर्टिकुलर बुक फॉर इट. इसमें कुछ चीज़ें इसरो को कवर अच्छे से कर लेना, एंड लेटेस्ट डिस्कवरीज को अच्छे से कवर कर लेना. जैसे बीच में वो हो रहा था, माइट्रोकॉन्ट्रियल डिजीज़ करके कुछ इंग्लैंड ने कुछ किया था, राइट. 3 पेरेंट बेबी वाला जो एथिकल इशू निकल के आया था उसके अंदर, तो वो चल रहा था. अब तो वो हो गया तुम्हारा, राइट. तो उसी तरीके से जितने भी डिस्कवरीज हो रही हैं या प्रेवलेंट आपके साइंस टेक के इशूज़ हैं, दैट यू शुड कवर फ्रॉम करंट अफेयर्स. अगेन देयर इज एवरी ईयर यूजुअली वन ऑफ योजना कम्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट. अगर नहीं है तो लास्ट ईयर का उठा लो, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट कोई खास चेंज नहीं होता है. तो वो एक योजना पढ़ो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, दैट इज मोर देन इनफ. डिफेंस के लिए योर डिफेंस एक्सरसाइजेज, योर लेटेस्ट एक्विजिशंस बाय इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, सबमरीन्स, अरिहंत, जितना भी है सब करंट अफेयर से होता है, राइट. IR के लिए अगेन पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं IR के जो नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, पंचशील, नो फर्स्ट यूज़, ठीक है. तो ये चीज़ें आप नेट से सर्च करके पढ़ लो. और बाकी करंट अफेयर्स है, मतलब विजन के अंदर, विजन मैगजीन जो आती है उसके अंदर IR वाले सेक्शन में स्पेसिफिकली दे रखा होता है कि इंडिया US रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना. तो बस वो करके आप यू कैन जस्ट डू इट, क्विकली कवर हो जाएगा आपका, ठीक है. नाउ एक क्वेश्चन, सो वी आर बेसिकली डन विद सोर्सेज एंड नाउ सो वी प्रोसीड बियॉन्ड दिस. एक क्वेश्चन विच आई कीप कमिंग ओवर हेयर अगेन एंड अगेन इज कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है. लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट प्रिपरेशन, दे आर कंसर्न कि कोचिंग करें कि ना करें. सी कोचिंग का सीन ऐसा है कि आई पर्सनली, let me be very honest with you, I personally joined coaching, okay, but I did not attend it because I went for like 20-25 days and then I found it useless because मुझे पता था कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है and the coaching center people were not teaching that. And I must tell you that मेरे साथ जो बैच में थे अभी तक, उस बैच में से till date I am not aware मेरे अलावा कोई भी और क्लियर किया होगा, which is very unfortunate. बट आई थिंक पर्सनली कोचिंग काम नहीं आई, किसी भी चीज़ में काम नहीं आई, ठीक है. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. आपको करनी है नहीं करनी है, इट्स अप टू यू, बट उसके कॉन्स क्या है, इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली. सेकेंडली, दे विल टीच यू थिंग्स विच 99% विल नॉट कम. थर्ड, वो आपका खाएंगे जिसमें आप बैठ के पढ़ सकते हैं उन चीज़ों को जो एग्ज़ाम में एक्चुअली आएंगी. सो बेसिकली देयर इज़ अ वेरी हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो. There is a normal cost, there is an opportunity cost. Opportunity cost is that you are not studying that which will actually come in the exam because you are spending your time in coaching, right? And third, a lot of coaching actually misguide you. So coaching करना है कि नहीं करना है, it's up to you.
क्रैश कोर्सेज होते हैं जिसमें कोई मे बी एक हफ्ते में आके कुछ पढ़ा के चला जाए, वो कर सकते हो। उसमें भी कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो मत करो। अगर अगर कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट आके आपको कुछ एक क्रैश कोर्स करा रहा है 3-4 दिन का, वो आप कर लो, क्योंकि उसको पता है कि क्या एग्ज़ाम में आया है जिससे उसका एग्ज़ाम निकला है। टीचर्स करा रहे हैं, टीचर्स का मत करो। जो अगर कोई सिलेक्टेड है वो करा रहा है तो वो कर लो, वो मेरे ख्याल से इज़ गोइंग टू बी मच यूजफुल टू यू। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। एवरी ईयर दे कम अप विद अ न्यू स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस, न्यू काइंड ऑफ अ पैटर्न। तो टीचर्स नहीं कर सकते अपने आप को इतना फ्रीक्वेंटली अपडेट, बट जो बच्चा हर साल निकाला है वो उसने डेफिनेटली उसकी स्ट्रैटेजी काम करी है। तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू टू लिसन टू दैट पर्सन जिसका एग्जाम निकला है। ठीक है, तो कोचिंग का सीन ये है। बट कोचिंग में लेट मी ऑल्सो ऐड कि जीएस की कोचिंग के बारे में बताया मैंने ये सब। ऑप्शनल में द स्टोरी इज डिफरेंट। ऑप्शनल में यू कैन डू कोचिंग, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू यू, क्योंकि ऑप्शनल इज नॉट एज डायनेमिक एज अ जीएस पार्ट इन दी पेपर। तो वही चीज़ें आ रही हैं, चेंज नहीं हो रही, तो कोचिंग एक्चुअली हेल्प्स यू। ठीक है, तो ऑप्शनल की कोचिंग यू कैन डू। इफ़ यू हैव मनी यू वांट टू इन्वेस्ट इन कोचिंग, गो फॉर ऑप्शनल की कोचिंग, डोंट गो फॉर जीएस कोचिंग। ऑलराइट, देन एक क्वेश्चन याद है, हाउ टू चूज ऑप्शनल। तो देखो ऑप्शनल का सीन ये है कि आपको 3-4 चीज़ें समझ में आनी चाहिए बिफोर चूजिंग योर ऑप्शनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर यू डिसाइड ऑन ऑप्शनल इज आपका इंटरेस्ट। डू यू फाइंड दैट सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग और नॉट। कई सारे लोग ये सोच के लेते हैं कि ओके, वन क्वेश्चन कीप्स कमिंग अगेन एंड अगेन कमेंट सेक्शन में, लेक्सिकन के बारे में, एथिक्स के बारे में। विल कम टू दैट, वेट, ओके, विल कम टू दैट। तो ऑप्शनल का ऐसा है कि सी कई सारे सोचते हैं कि इस ऑप्शनल के अंदर बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो ये वाला ले लेते हैं। वो जिसके आ रहे हैं ना, वो कितने बच्चे हैं, हैंडफुल ऑफ देम, लिया कितने सारों ने, हर किसी के नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे कई सारे रीज़न है उस बच्चे के नंबर क्यों आ रहे हैं। देखो, पहली चीज़ ये है कि उसको उसमें इंटरेस्ट था, इसलिए आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो नो मैटर उस ऑप्शन में 400 नंबर मिलते हो, आपके 400 कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट। व्हाट इज द सेकंड थिंग? सेकंड थिंग इज बी वेरी प्रैक्टिकल। सिलेबस, हो सकता है हिस्ट्री में बड़ा मजा आता हो, बहुत इंटरेस्ट हो, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको पता है पूरा नहीं कर पाओगे। तो द सेकंड थिंग इज आप सिलेबस निकालो अपना उस ऑप्शनल का एंड गो थ्रू इट, सी कि उसके अंदर आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पाओगे। व्हाट इज द थर्ड थिंग? थर्ड थिंग इज पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू गेट एन आइडिया कि सिलेबस में से जो दिख रहा है उसी की कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें एग्जाम में आ रही हैं या डिफरेंट है, या कितना वेरिएंस है, दैट यू गेट बाय स्टडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। फोर्थ इज योर गाइडेंस। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऑप्शनल में गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, विच मीन्स कि कोचिंग हो गया या आपके टॉपर्स हो गए जिनसे आप बात कर सकते हैं। तो अगर कोचिंग अवेलेबल है, अच्छा है तो इट इज़ गुड फॉर यू। ठीक है, देन गाइडेंस के अंदर आपका स्टडी मटेरियल भी आता है, नॉट जस्ट कोचिंग। मार्केट के अंदर उसके लिए जो पढ़ने के लिए जो किताबें चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं, नोट्स हैंड रिटन फोटोकॉपीड अवेलेबल है कि नहीं, ये सब चीज़ें भी देखो। ठीक है, ओके, इतना हो गया। अब ये इन पैरामीटर्स पे आप अपने ऑप्शंस निकाल लो, क्रॉस करते जाओ, ये हट गया, ये हट गया, जो ऑप्शन आपका बचेगा एंड में वही आपको लेना है। ठीक है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 या 3 ऑप्शन जो सब में फिट बैठ रहे हो, क्योंकि हर ऑप्शन का सिलेबस डिफरेंट होता है। तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन बचेगा एंड में। ठीक है, सिलेबस जिसका सबसे कम हो, जिसको आप इजीली प्रिपेयर कर सकें, जिसमें नंबर भी बच्चों के अच्छे आ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको इंटरेस्टिंग लगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के समझ में आए कि करा जा सकता है, मटेरियल अवेलेबल है पढ़ने के लिए, गाइडेंस अवेलेबल है, देन यू टेक दैट ऑप्शन। ठीक है, ये चीज़ है। अब आप मुझसे पूछेंगे कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, बता दो, दैट आई कैन नॉट टेल, क्योंकि वो सबके लिए डिफरेंट होता है, सब्जेक्टिव होता है। आई टुक फिलोसफी बिकॉज फिलोसफी में मेरे को इंटरेस्ट था। अनफॉर्चुनेटली नंबर नहीं आ रहे, बट अब क्या कर सकते हो, जिसमें नंबर आ रहे हैं उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं ले भी लूँगा तो भी मेरे नंबर नहीं आएंगे। थोड़े बहुत नंबर और होते फिलोसफी में तो मेरी रैंक और ज़्यादा अच्छी हो जाती। बट ये सब चीज़ें सोच के कुछ नहीं होता है, आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा एंड यू हैव टू डू योर बेस्ट एंड देन यू हैव टू लीव द रेस्ट। सो आप बस उस हिसाब से अपना ऑप्शनल डिसाइड करिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लॉट ऑफ पीपल यू आर आस्किंग कि कॉलेज के साथ कैसे तैयारी करी जाए। अब बीटेक हो, एमटेक हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, मैं ग्रेजुएशन ले रहा हूँ पूरा। ठीक है,
हाउ डू प्रिपेयर विद दैट? तो पहली चीज़, सी, वेरी प्रैक्टिकली, नो मैटर किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो. रीज़न है यूपीएससी में अपडेटेड चीज़ें आती हैं. मैंने जो पहले पढ़ा है बस उसी को पढ़ के कल को मैं वापस 2019 में एग्ज़ाम देने चले जाऊँ, मेरा नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं एक साल में, और वो एक साल में जो बदला है उसी में से सवाल आना है, प्रीलिम्स में भी, इंटरव्यू में भी. ठीक है, तो यू हैव टू स्टडी द लेटेस्ट थिंग्स. आपको मेरे पे क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं 2022 में एग्ज़ाम दूंगी, मैं 2023 में एग्ज़ाम दूंगा, मैं 2021 में एग्ज़ाम दूंगी, मेरे को एक ही बार में निकालना है, कैसे निकाल दूँ? अरे ऐसे नहीं होता है. 2022 में एग्ज़ाम दोगे तो 2021 से 22 के बीच के जो करंट अफेयर्स हैं वो आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 23 में देना तो 22 से 23 के आएंगे करंट अफेयर्स. ठीक है, और एक ही बार में निकाल दूँ यार, ऐसा जो कोई सीरियस कैंडिडेट नहीं होता जिसका मन होता है कि मैं 3 अटैम्प्ट लेके निकालूंगा या मैं 4 अटैम्प्ट लेके निकालूंगा. सबको एक ही बार में निकालना होता है यार, है ना. कोई ऐसा प्लान करके पंचवर्षीय योजना बना के तो आया नहीं होता कोई, कि 5 साल बैठेंगे आराम से, फिर निकालेंगे जब निकलेगा, मतलब दिखी जाएगी, आराम से आके तैयारी करते हैं. ऐसा कुछ सबको एक ही बार में निकालना होता है, सीरियस कैंडिडेट्स को, है ना. तो आई कांट गिव यू अ मंत्र कि एक बार में निकल जाए. सिलेबस उठाओ, पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ो. हर चीज़ के नोट्स बनाने दनादन मत लग जाओ. जो नहीं याद हो रहा है बस उसी के बनाओ, बाकी चीज़ों को हाईलाइट करो, रिवाइज करो, टेस्ट लिखो. बस यही होता है, यही तुम करते हो, यही मैंने किया है, यही बाकी लोग करके निकले हैं जो बन गए IAS IPS IRS, है ना. और टेस्ट काफ़ी सारे करते जाओ और कंटिन्यूस रीवैल्यूएशन करते जाओ खुद का. और उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो किसी सीनियर को पकड़ के उससे पूछो गलती कहाँ हो रही है, आंसर दिखाओ, उससे बात करो. ठीक है, स्ट्रैटेजी डिस्कस करो, दैट्स इट. यही होता है. एक बार में निकालने का कोई फूल प्रूफ मंत्र मुझे नहीं मिला. नहीं, मेरा निकल जाता, मेरा तीसरा अटैम्प्ट में जाके निकला. एक ही बार में निकालना होता तो मैं खुद निकाल लेता ना यार. ठीक है, ओके. तो ठीक है, ये हो गया. अच्छा, ये हुआ नहीं एक्चुअली, आई स्टार्टेड विद समथिंग एल्स. आई वांटेड टू टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन. तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हो तो थोड़ा लाइट लो, NCERT पढ़ लो, रिवाइज करते रहो, अखबार पढ़ते रहो, बेसिक GK डेवलप करो अपना. थर्ड ईयर में आके थोड़ा सीरियसली लो, अपना ऑप्शनल ख़त्म कर लो. ठीक है, एक बार निपटा लो ऑप्शनल, और चीज़ों का थोड़ा और कायदे से करो. देखो, फाइनल ईयर जो है वो तुम्हारा ख़त्म होगा अप्रैल मार्च के आसपास, और जून में तुम्हारा पेपर होगा. 2 महीने का तुम्हारे पास टाइम मिलेगा. तो तुम अगर अपने आखिरी सेमेस्टर में जनवरी से तैयारी करना चालू करते हो, तो जनवरी से जून के बीच में अगर तुम अपना करंट अफेयर और GS वगैरह संभाल चुके हो और उससे पहले ऑप्शनल कर चुके हो, तो डायरेक्टली तुम जून में ढंग से पेपर लिख के 2 महीने के बाद फिर उसको निकाल सकते हो. तो थर्ड ईयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर फॉर BSc. फॉर BTech फोर्थ ईयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर. लेकिन BTech वालों के पास एक BTech प्रोजेक्ट भी होगा फाइनल ईयर में, उसके साथ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. बट देन यू हैव टू मैनेज इट. मैंने भी किया था मैनेज, बट मेरा नहीं हुआ था. सो सबका अपना अपना है, मतलब आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं. ठीक है, तो ये है. जॉब के साथ कैसे करना है? जॉब के साथ देखो डिफ़िकल्ट हो जाता है डेफिनेटली, क्योंकि तैयारी के लिए आपको कम से कम 4 घंटे की लगातार क्वालिटी स्टडीज़ रोज़ देनी है. उससे कम में नहीं हो पाएगा. सी, आई डोंट बिलोंग टू दोज पीपल हु कैन क्वान्टिफाई कितने घंटे पढ़ के निकल जाएगा. आई डोंट नो, बट आई कैन टेल यू कितने घंटे से कम पढ़ोगे तो डेफिनेटली नहीं निकलेगा. 4 घंटे भी ना अगर नहीं पढ़ा तो तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा. ऑप्शनल इतना बड़ा होता है, 2 पेपर तो ऑप्शनल के होते हैं, फिर GS है. ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द सन इज आस्क्ड इन दिस एग्जाम. तो वो सब कवर करने का टाइम तो चाहिए. ठीक है, क्वांटिटेटिवली उसके लिए टाइम चाहिए. तो 4 घंटे आपको अच्छे से क्वालिटी स्टडी देनी ही होगी. तो जॉब जो भी है आपका, अगर आप वापस आने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद 4-5 घंटे निकाल रहे हैं, क्वालिटी स्टडी कर ले रहे हैं और थोड़ा और कवर कर लेते हैं वीकेंड्स पे या छुट्टियों में, तो आप कर सकते हैं. लेकिन करना आपको वही है, आप अपने वर्क आवर्स के बाद करिए. और अगर वर्क के दौरान भी बीच में पढ़ सकते हैं, आपका अलाउ करता है जॉब ऐसा, देन यू कैन कीप रीडिंग. एटलीस्ट करंट अफेयर पढ़ सकते हैं जॉब के अंदर बैठे बैठे. PDF खोल ली कंप्यूटर पर या मोबाइल में और उसमें करंट अफेयर पढ़ लिए. काय की PDF खोलोगे, विजन IAS या मैगजीन की PDF खोल लो, बहुत ईजिली अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो करंट अफेयर कर सकते हो बैठे बैठे. तो जॉब का सीन ये है. ठीक है, जॉब और ग्रेजुएशन में आपको ऐसे करना है. देन कम्स कि रिवीजन कैसे करना है, याद करने की क्या ट्रिक्स होती हैं. देखो, रिवीजन का सीन ये है कि रिवीजन
कि एक क्वालिटी याद रखना हमेशा, रिविजन शुड बी वेरी क्विक, रिविजन शुड बी वेरी वेरी क्विक। तुम अगर पूरे पूरे दिन रिवीजन कर रहे हो तो वो रिवीजन नहीं है, वो तुमने वापस से चालू कर दिया पढ़ना, वो रिवीजन नहीं है, वो फिर तुम घुट्टी लगा के घोल रहे हो उसको, किसी काम का नहीं है वो। व्हाट यू शुड डू इज प्रेफरेबली सिट विद अ फ्रेंड और उसको पढ़ा दो वापस से, दैट विल बी योर रिवीजन और उसकी पढ़ाई, ठीक है। और वो जल्दी जल्दी होना चाहिए, क्विकली तुम बोलते चले गए, अगला सुनता चला गया, या खुद के साथ बैठे हो तो खुद को बोल बोल के कर लो, फटाफट फटाफट फटाफट, जस्ट गो थ्रू इट। ये नहीं कि रिवीजन करते करते नींद आ गई, सो गए, उठे, थोड़ा और किया, फिर रात हो गई, फिर अगला दिन हो गया, पता चला एक दिन निकल गया, रिवीजन ही कुछ नहीं हुआ है। वो नहीं करना चाहिए, रिवीजन शुड बी वेरी क्विक। सेकेंडली, किताबों के अंदर हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। और उसी चीज़ को जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो केवल हाईलाइटेड चीज़ पढ़ो, हर चीज़ को मत पढ़ो, ठीक है। द थर्ड इज, सबसे अच्छा रिवीजन का तरीका होता है टेस्ट, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। जब तक टेस्ट नहीं लगाओगे चीज़ें चिपकेंगी नहीं। अगर मैं तुमसे एक चीज़ तुमने किताब में पढ़ ली और कल आपसे पूछी जाए तो हो सकता है आपको याद ना रहे, लेकिन आपने पढ़ ली, अब आपने उसके ऊपर एक टेस्ट दिया, टेस्ट में आपने डजंट मैटर ठीक किया गलत किया, आपने दिया, ठीक है, टेस्ट दे लिया, आंसर दे लिया, पीछे से चेक कर लिया, सही है जो गलत है जो भी है, अब आपको वो कभी दिमाग से नहीं निकलेगा। स्पेशली अगर आपने गलती करी तो कभी दिमाग से नहीं निकलेगा। नेक्स्ट टाइम जब तुमसे पूछा जाएगा तो तुम्हें याद रहेगा, हाँ यार ये गलत किया था टेस्ट के अंदर, इसका आंसर ये। तो बेस्ट तरीका होता है रिवीजन का टेस्ट। टेस्ट लगाने इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आप में से कई सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ये केमिस्ट्री ऑप्शनल में कैसी, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में कैसी है। ऐसे आई कैन टेल यू कैसी है, मेरा खुद का ऑप्शन फिलोसफी था, आई कैन टॉक अबाउट फिलोसफी। अब ये कैसी है, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, ठीक है, तो नॉट द करेक्ट पर्सन टू आस्क। देन समबडी इज आस्किंग अगेन अगेन लेक्सिकन। लेक्सिकन का यार आई थिंक इट्स अ गुड बुक, मैंने वही सुना है इसके अंदर, एक एथिक्स के अंदर, बट आई हैव नॉट स्टडीड एथिक्स फॉर्मली किसी किताब से। फॉर मी, आई टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो, एथिक्स एक बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर एक अलग से मैं सेशन करूँगा आफ्टर आई रीड इट माई सेल्फ। मैं आपको बताने से पहले खुद कुछ भी बताऊँ, खुद करना चाहता हूँ, नॉट दैट मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आप लोग सुन लेंगे, तो इसलिए आई डू इट माई सेल्फ एंड देन आई डू अ लाइव सेशन ऑन एथिक्स ऑल्सो फॉर्मली। लेक्सिकन ही सुना है मैंने भी, मेरे पास भी पढ़ी है, बट मैंने कभी उसको फॉर्मली पढ़ा नहीं है, ठीक है। मेरा ऑप्शनल फिलोसफी है तो मैं उसी के बारे में बता सकता हूँ, आप किसी और ऑप्शनल के बारे में मत पूछिए मुझसे, ठीक है। यू कैन प्रॉब्ली रीड टॉपर्स के पास और कौन से ऑप्शंस हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। देन करंट अफेयर्स कैसे करने हैं। करंट अफेयर्स आपको मैगजीन से करने हैं, अखबार से करने हैं। रोज़ का आप अखबार एक पढ़िए, 1 न्यूज़पेपर एवरी डे, मॉर्निंग आपका स्टार्ट ही होना चाहिए हिंदू से या इंडियन एक्सप्रेस से। एंड उसके बाद जो सी दीज न्यूज़पेपर्स आर मेंट फॉर जनरल पब्लिक ऑल्सो, नॉट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स ओनली। तो जनरल पब्लिक को वो केवल फैक्चुअल चीज़ें नहीं देंगे ना, वो एनालिटिकल चीज़ें भी देंगे ताकि उनको पढ़ने में मज़ा आए और पढ़ने में रस मिले उनको, है ना। तो इसलिए उसके अलावा भी, न्यूज़पेपर के अलावा भी, यू हैव टू सप्लीमेंट इट विद योर करंट अफेयर मैगजीन्स। सो करंट अफेयर मैगजीन आप कर लीजिए, आइदर योर विजन आईएएस की है, इनसाइट आईएएस की, दृष्टि की, कई सारी हैं, फोकस है, अराउज आईएएस की, विजन आईएएस की बेस्ट है, उसमें छोटी भी है, मोरलेस सारी चीज़ें कवर हो जाती है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो वही कर लीजिए, ठीक है। और न्यूज़पेपर में से नोट्स बनाने के लिए, सी अगेन ये नोट मेकिंग में कवर करूँगा, ठीक है। विल टॉक अबाउट नोट मेकिंग अभी थोड़ी देर में, उसमें कवर करते हैं ये नोट्स किसके बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, उसमें कवर करते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर में कुछ नहीं है। बाकी राज्यसभा टीवी है, वो आपको देखनी है, उसके अंदर देश विदेश आता है, इंडियाज़ वर्ल्ड आता है, विशेष आता है, और क्या आता है आपका, 3-4 चीज़ें और आती हैं उसमें, फ्रैंक परेरा उसमें होस्ट करता है, वो सारी आपको कवर करनी है, ठीक है। वो राज्यसभा टीवी में मतलब आ रहा है कुछ, यानी कि देखो राज्यसभा टीवी, योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी, ये सारी चीज़ें सरकारी सोर्सेज हैं, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो सरकार की प्रायोरिटी में है, तभी तो सरकारी चैनल और सरकारी पब्लिकेशन उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इनके बारे में नहीं पता है तो फिर किस तरह के सिविल सर्वेंट बनोगे आगे जाके। आपसे इंटरव्यू में सबसे पहले यही सवाल पूछा जाएगा कि यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन द गवर्नमेंट एंड यू डू नॉट नो द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, देन यू डोंट अपीयर एज अ गुड कैंडिडेट फॉर बीइंग सेलेक्टेड। तो इसलिए आपको इनमें जो जो आ रहा है वो तो कवर करना ही है, योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी एंड योर आरएस टीवी, राज्यसभा टीवी, ठीक है। करंट अफेयर्स यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ
टेस्ट सीरीज़ के बारे में लोग पूछ रहे हैं क्या करना है, तो टेस्ट सीरीज़ खरीद के रख लो, मार्केट में अवेलेबल है, इजीली ज्वाइन नहीं करनी है, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, मतलब ख़रीद के रख लीजिए, उनको लगा लीजिए। आप उसमें सवाल होते हैं 100 टेस्ट, एक टेस्ट में 100 सवाल होंगे, पीछे जवाब होंगे, तो उससे आप करिए और फिर चेक करिए और फिर उसको रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है उसको, नहीं तो रिटेन नहीं होगा रियल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ आपका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको एलिमिनेट करने की स्किल्स आ जाती हैं गलत क्वेश्चंस को। अब ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। टेस्ट सीरीज़ में आपकी चीज़ें रिवाइज भी हो जाती हैं, रिकलेक्ट भी हो जाती हैं, और टेस्ट होता है तो एक इंसेंटिव भी बना रहता है कि आप पढ़ लेते हैं क्योंकि टेस्ट है। जस्ट अ सेकेंड। टेस्ट होता है तो आपको लगता है कि यार थोड़ा पढ़ लेते हैं, टेस्ट है। बट एक नेगेटिव चीज़ ये भी होती है कि कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार टेस्ट तभी देंगे जब पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। ये भी नहीं होता है। सी, टेस्ट कंपटीशन के लिए नहीं होता है। टेस्ट इज़ फॉर योर ओन लर्निंग पर्पस, इट्स ऑल्सो लाइक अ बुक। तो टेस्ट को करने का मतलब ये है कि 100 सवाल आपने किए तो उसको ये सोच के मत करो कि 100 में से मेरे 80-90 सही होने चाहिए। उसको ये सोच के करो कितने भी ठीक हों, पूरा टेस्ट कर लूँगा, रिवाइज कर लूँगा, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम लगाऊंगा तो 100 में से 100 सही होने चाहिए, ठीक है। देखो प्रीलिम्स निकालना है, 100 सवाल प्रीलिम्स में आएंगे, तो मान लो कि आपने 2 टेस्ट सीरीज लगाई 35 टेस्ट की, विच मीन्स 70 टेस्ट। सो इफ़ यू हैव डन 70 टेस्ट, you've revised all of them, first page to last page, which means 7,000 questions, right? Now if you know 7,000 questions by heart, if you've revised them, which means कि next time when you will find any question amongst those 7,000, you won't mark it wrong. Then out of those 7,000, there's a great possibility that most of the questions in the actual prelims exams come from them. You're getting my point? समझ में आया आपको क्या कह रहा हूँ? 7,000 सवाल अगर आपने रट लिए तो आपके एक्चुअल जो पेपर होगा जिसमें 100 सवाल आएंगे, हो सकता है उसमें से 70-80 सवाल एक्चुअली उन 7,000 सवालों में से हों, बशर्ते 7,000 रटे होने चाहिए। तो योर टेस्ट कॉपी, योर टेस्ट सीरीज इज़ नॉट फॉर कॉम्पिटिशन, इट इज़ फॉर लर्निंग। ओके, इट्स अ गुड ट्रिक। तो कर जाओ, 2 टेस्ट सीरीज कर जाओ, ठीक है, प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। देन ओके, उसके बाद क्या था, एक दिमाग में आया था, हाँ, एलिमिनेशन कैसे करना है प्रीलिम्स में। सी, प्रीलिम्स में एलिमिनेशन का सीन ऐसा है कि जो भी स्टेटमेंट एक्सट्रीम लैंग्वेज में फ्रेम्ड है वो यूजुअली गलत होता है। तो देयर आर सर्टेन वर्ड्स लाइक ऑलवेज, एब्सोल्यूट, नन, राइट, ये गलत होते हैं। कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, तो वो स्टेटमेंट यूजुअली गलत होगा, क्योंकि कोई हल्की सी भी गुंजाइश होगी, 1.1% गुंजाइश भी होगी तो भी ऑलवेज वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए ऑलवेज वाला यूजुअली गलत ही होता है, ठीक है। उसके बाद देन मे और मस्ट। कोई स्टेटमेंट अगर मस्ट, किसी स्टेटमेंट में अगर मस्ट आ रहा है, दिस मस्ट बी ट्रू, तो वो गलत होगा। लेकिन आ रहा है दिस मे बी ट्रू, तो वो ठीक होगा, क्योंकि मे में गुंजाइश वाला फैक्टर अकाउंट हो जाता है, मस्ट में नहीं होगा। तो एक्सट्रीम हो गया ना मस्ट, शुड और शाल तो सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ जहाँ भी लगे कुछ एक्सट्रीमली फ्रेम्ड है वो एलिमिनेट हो जाएगा सीधे। एक ट्रिक ये होती है कि साइंस टेक के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यूजुअली ऑल ऑफ द अबव ठीक होते हैं, क्योंकि साइंस टेक इतना स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है कि इसरो वगैरह ये लोग इतनी स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे हैं कि देयर माइट बी समथिंग जो आपको लग रहा हो कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो कैसे क्या होगा, लेकिन साइंटिस्ट ने वो कर लिया होगा, ठीक है। एक आध टेस्ट भी उनका सक्सेसफुल हो गया तो मतलब हो गया है, ठीक है। तो इसलिए साइंस टेक के यूजुअली सवाल ऑल ऑफ द अबव होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रीलिम्स कैसे हैंडल करना है। एलिमिनेशन की टेक्निक यार इतनी ही होती है, मतलब सभी टॉपर को इतना ही पता होता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। इसके आगे बस गट फीलिंग होती है लोगों के। कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली तुक्के अच्छे मारते हैं, तो वो आपको डेवलप करना पड़ेगा टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगा के, ठीक है। उसमें से ज़्यादा कुछ है नहीं। देन एक क्वेश्चन ये आता है कि नेक्स्ट 6 महीने जो हैं उसमें क्या करना चाहिए हमको, प्रीलिम्स आने वाला है। दिस इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स।
तो देखो यार, द बेस्ट थिंग हाउ टू गो अबाउट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स इज कि अपने अभी के अभी ना जितने स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं वो ख़त्म कर लो सबसे पहले। तुम्हारी एनसीईआरटी हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, या जीसी लियांग हो गई, ये सब आप एकदम फटाफट निपटा दो अभी के अभी, ठीक है, ज़्यादा उसमें टाइम मत लगाओ। उसके बाद आप करंट अफेयर्स करो। आई होप ये लोग आप ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं। करंट अफेयर्स करो, मैप्स के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। आपकी 1 साल की मैगजीन्स निपटा दो आप विजन की, विच मीन्स आप जून टू जून तो पूरा कवर कर ही लो मैगजीन्स का, ठीक है। बीच में एक विजन वाले प्रीलिम्स 365 निकालेंगे, वो भी कर लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट लगाओ रोज़। आई थिंक अभी अगर 5 महीने भी हैं, विच मीन यू हैव अराउंड 150 डेज, तो 150 डेज़ का मतलब ये है कि अगर रोजाना एक टेस्ट भी लगाओ तो भी 150 टेस्ट लगा सकते हो। 150 टेस्ट नहीं लगाने हैं, 70-80 टेस्ट लगा लो, बहुत है। रिवीजन करते रहना लेकिन उन टेस्ट का। तो यू हैव टू डू एटलीस्ट 70-80 टेस्ट, ठीक है। तो द बेस्ट इज 70-80 टेस्ट यू डू फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है। एंड अभी ऑप्शनल मत पढ़ना, मतलब अभी पढ़ना चाहो फॉर 2 months यू कैन स्टिल रीड, बट आफ्टर February डू नॉट पिक अप योर ऑप्शनल, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट taking stress about how they'll clear mains if the prelim is if they clear prelims. So out of the stress they start reading optional for mail. Don't do that right now, ठीक है, अभी कर लो, cool. And this is how you have to go about for the next 6 months. 3 things: standard, current affairs, tests are most important, ठीक है. Then how to go about in the मंथ्स आफ्टर प्रीलिम्स एंड बिफोर मेंस। 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक जीएस होगा, एक ऑप्शनल हो जाएगा मेंस के लिए। पहले जीएस की बात करते हैं। जीएस में आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। एंड यू सी व्हेन वी से आंसर राइटिंग, वी डोंट मीन कि पूरा आंसर लिखो रोज, ठीक है। लिखना है लिख लो, टाइम बचाना है और इफेक्टिवली यूज़ करना है। तो व्हाट यू शुड डू इज कीवर्ड दो अपने आप को। मैंने आपको दिया कीवर्ड एग्रीकल्चर, उस एग्रीकल्चर को लिखो बीचों बीच में पेज पे, फिर फटाफट अपने दिमाग को चलाओ और उसमें जितने पॉइंट बना सकते हो बनाओ। चैलेंजेस में बनाओ, पहले क्या क्या चैलेंजेस हैं, फिर सोल्यूशन क्या क्या है, नई नई स्कीम क्या क्या आ रही है, जो अपने आंसर में डालोगे। मेन जो क्रक्स होता है, मुद्दा होता है, वो बकवास नहीं करनी मेंस में जाके। बकवास करोगे तो बकवास नंबर मिलेंगे। अच्छा पॉइंट डालो, ठीक है। सरकार की प्रायोरिटी क्या है एग्रीकल्चर के अंदर, RSTV देखोगे, योजना पढ़ोगे, कुरुक्षेत्र पढ़ोगे, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो फटाफट एक माइंड मैप टाइप क्रिएट कर लो, वो आपकी आंसर राइटिंग हो गई। पूरा आंसर नहीं लिखना है आपको, वो भी लिखो। पूरे टेस्ट दो। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट 3-3 घंटे के बैठ के कोशिश करो 20 सवाल 3 घंटे में हो जाए, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से करिए, ठीक है। दिस इज योर आंसर राइटिंग बेसिकली। बार क्विकली यू कैन रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है, डू दैट। और ऑप्शनल हो गया आपका, तो ऑप्शनल के अंदर बेस्ट इज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में जितने ज़्यादा टेस्ट लोगोगे उतना अच्छा आपका ऑप्शन रिवाइज होगा एंड उतना ज़्यादा दिमाग में चिपक जाएगा, मसल मेमोरी में आ जाएगा आपका। सी मेंस में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप पूरे सवाल नहीं कर पाओगे, 20 सवाल। तो वो कैसे करना है आपको? एक आपका होता है कि आपके दिमाग में एक जवाब आपको आता है, लेकिन यू आर टेकिंग टाइम टू रिकलेक्ट इट आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। तो यू इतना अपने आप आंसर लिख लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि सवाल पढ़ा और हाथ में से जवाब निकलना चाहिए, ठीक है। थोड़ा मतलब ड्रामेटिक लग रहा है, बट ये ऐसे ही होता है, ठीक है। इट शुड कम इन योर मसल मेमोरी। थोड़ा सा पढ़ा, खट से सवाल निकल गया, ठीक है, जवाब निकल गया। सॉरी, मैं बीच में कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ तो थोड़ा मिस हो जाता है, ठीक है। काफ़ी दिग्गज लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इफ़ यू कुड रिकग्नाइज सम ऑफ देम, बट ठीक है। अपनी अकेडमीज़ में से ट्रेनिंग से थोड़ा टाइम निकाल के यहाँ पे पधारे हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय ऑल्सो। जाओ, आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। एनीवेज, सो ठीक है, तो ये हो गया आपका कैसे कवर करना है मेंस के लिए, ठीक है। इंटरव्यू के लिए फिर एक सेशन ले लेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं इंटरव्यू को, ठीक है। प्रीलिम्स में डूज एंड डोंट्स क्या करना है, या डूज एंड डोंट्स प्रीलिम्स के अंदर ये होता है कि अभी जब प्रीलिम्स से एक तो बता ही दिया, प्रीलिम्स से पहले ऑप्शनल पढ़ने मत बैठ जाना, या प्रीलिम्स से पहले एकदम एनसीईआरटी लेके मत बैठ जाना, बिकॉज उसमें से ज़्यादा सवाल मतलब वो कॉन्सेप्चुअल है, सवाल आते हैं, बट लेकिन ये नहीं कि एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर दिया। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना, टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। टेस्ट उसके भी होते हैं, आपके एनसीईआरटीज़ के भी टेस्ट होंगे, तो उन्हीं को ही रट लो, वो भी आपका कवर कर लेंगे, ठीक है। मैप्स करने पड़ेंगे, ज्योग्राफी के मैप्स करने पड़ेंगे, एनवायरनमेंट के मैप करने पड़ेंगे। मैपिंग में क्या करना है, एटलस उठाओ, हर स्टेट में से कौन सी नदी जाती है, किस नेशनल पार्क के थ्रू होती हुई जाती है, कौन सी पिलग्रिमेज साइट है वहाँ पे, जो वहाँ का एरिया है उसका
मिडीवल नाम क्या है, एंशियंट नाम क्या है, जैसे विदर्भ है, सौराष्ट्र है, काठियावाड़ है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, ये सारे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इसके अंदर अलग अलग रीजन्स हैं, ठीक है, तो वो पता होने चाहिए, राइट। ये इस तरीके मैपिंग कर लो आप। क्या क्या बताया, रिवर्स बताया, लेक्स बताया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स के अंदर सोर्सेज कहाँ ड्रेन होती हैं, ड्रेन का तो पता ही है आपको, या तो बे ऑफ बंगाल में होगी, अरेबियन सी में होगी, रण ऑफ कच्छ में होगी, या किसी लेक में होगी, राइट। सोर्सेज पता होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा मैप में क्या करना है, और एनवायरनमेंट के अंदर बता दिया मैंने आपको। एक ट्रिक और एनवायरनमेंट में, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसमें शेड्यूल्स होते हैं। तो शेड्यूल 1 जो है उसके अंदर वो हाईली प्रोटेक्टेड जानवर होते हैं, है ना। तो उन हाईली प्रोटेक्टेड जानवरों की शेड्यूल 1 की लिस्ट होती है, PDF है, गूगल करोगे मिल जाएगी, वो निकाल लो, उन जानवरों को मैप कर लो कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। वो जानवर जो हैं नेट पे सर्च करके देख लो उन जानवरों का थ्रेट लेवल क्या है IUCN के हिसाब से, वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। और उनको मैप कर लो इंडिया के मैप में किस स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे हंगुल है तो हंगुल कश्मीर में मिलेगा, स्नो लेपर्ड है तो स्नो लेपर्ड शायद वहाँ सिक्किम में मिलेगा, ठीक है। आपका ये हो गया, फिशिंग कैट है तो फिशिंग कैट शायद वेस्ट बंगाल में मिलेगी, ठीक है। और इनके वो क्या है, थ्रेट लेवल क्या है, राइट। तो ये सब चीज़ें आप कर लीजिए एक बार, ये इसमें से सीधे सीधे सवाल बनेंगे, जानवरों पे सीधे सवाल आता है एनवायरनमेंट में। ओके, ये हो गया आपका। लेट्स मूव ऑन, देन मैपिंग का हो गया। देन नोट मेकिंग इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नोट मेकिंग में क्या करना होता है, देखो GS की बात करते हैं। तो GS में कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपके थीमेटिक टॉपिक्स है, थीम बेस्ड बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। वर्ल्ड मैप की अभी बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, टैक्सेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, स्किल्स हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जॉब्स हो गया, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया। ये आपके मेजर मुद्दे हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं है ये मेजर मुद्दे हैं आपके, ठीक है। अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है, स्वच्छ भारत हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इनके नोट्स बनाओ, ऑलराइट। मेक नोट्स ऑफ दीज थिंग्स एंड द नोट्स शुड बी वेरी कॉन्साइज, 1 पेज मैक्स टू मैक्स 1.5 लाइक 1.5 पेज, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दीज विल बी अराउंड 25 to 30 टॉपिक्स, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। सो दीज 30 टॉपिक्स यू मेक नोट्स, मेजर थीमेटिक टॉपिक्स, और यू डोंट हैव टू वेट फॉर न्यूज़। ओपन इंटरनेट, सर्च अबाउट एग्रीकल्चर, मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्री, सेम है जब से बना है तब से इंडिया। अब चेंज हो गई हैं थोड़ी, स्कीम्स नहीं आ गई हैं, नए विद राइजिंग इनकम्स चैलेंजेस नए आ गए हैं, प्रॉब्लम्स नहीं आ गई हैं, उस हिसाब से यू राइट डाउन दैम, ठीक है। 1-1.5 पन्ने के नोट्स बना लो। अब क्या करो, कीप अपडेटिंग दैम। तो जैसे अखबार पढ़ रहे हो तो अखबार में, अब पूछा था किसी ने कि अखबार के नोट्स बनाने, क्या अखबार के नोट्स नहीं बनाने, सोर्सेज के नोट्स नहीं बनाने हैं, टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। समझ रहे हो डिफरेंस क्या है? देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। यू डोंट हैव टू मेक नोट्स ऑफ द सोर्सेज कि अखबार के नोट बना लिए, NCERT के नोट बना लिए ना, यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ टॉपिक्स कि थोड़ा एग्रीकल्चर का बना लिया, थोड़ा मनसबदारी सिस्टम का बना लिया, ठीक है, थोड़ा ड्रेनेज पैटर्न का बना लिया, दीज आर टॉपिक्स। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने अपना ये करा, अखबार पढ़ा, आपने कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा एग्रीकल्चर का, वो आपने अपने एग्रीकल्चर वाले नोट में ऐड कर लिया, ठीक है। सिमिलरली आपने कुछ देखा ज्योग्राफी के ऊपर कुछ आया है या कोई पर्टिकुलर फैक्ट आया, वो आपने उसी अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लिया कहीं। इस तरीके से ऐड करते जाओ, फैक्ट्स बहुत काम आएंगे आपको। आंसर की रिचनेस फैक्ट्स बढ़ा देते हैं। अब मैं ज्ञान बांटे जाऊँ वहाँ पे मेंस के आंसर के अंदर, आप भी मेंस लिख रहे हो, आप भी ज्ञान बांटोगे, हमारे जैसे कितने सारे बैठे हैं वो सेम सोर्सेज सेम अखबार पढ़ रहे हैं, वो भी सब सेम ज्ञान बांटेंगे। तो एग्जामिनर होगा, उसके पास कुछ होना चाहिए ना कि वो तुमको ज़्यादा नंबर दे। तुम्हें नंबर कब देगा वो? तुम्हारी एनालिसिस कोई बहुत जोरदार तो हो नहीं सकती, बिकॉज एनालिसिस तो तुम्हारे से अच्छे अच्छे वो रिसर्चर्स भी बैठे हैं जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में बैठे हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, बड़े बड़े योजना कुरुक्षेत्र भवनों में बैठे हैं, वो लिख रहे हैं, उसके वो EPW लिखते हैं, उनके पास भी एनालिसिस है। उनसे ज़्यादा एनालिसिस तो तुम कर नहीं पाओगे। फ्रैंक परेरा राज्यसभा TV में आता है, उससे एनालिसिस तो आप कर नहीं पाओगे। तो एनालिसिस के नंबर नहीं मिलेंगे आपको, सब एनालिसिस सेम करेंगे, ठीक है। आपको बेसिकली फैक्ट्स डालने पड़ेंगे और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स डालने पड़ेंगे। वो कहाँ से मिलेंगे? वो अखबार से मिलेंगे। तो एक
अलग नोटबुक बना लो भले, उसके अंदर ये सारे फैक्ट्स लिखते जाओ, एग्जाम्पल्स लिखते जाओ। करप्शन का एग्जाम्पल लिख लिया, ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, और उसको अपने आंसर के अंदर लिख दिया आपने, वो आपके आंसर को यूनिक बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट करो अखबार में से, ये चीज़ आप, ठीक है, ये कहीं से भी कर सकते हो एक्सट्रैक्ट, अपार्ट फ्रॉम अखबार नहीं, ये आप ARC से कर सकते हो, न्यूज़ देख रहे हैं न्यूज़ से कर सकते हो, पापा मम्मी भाई बहन से बात कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, तो कोई इंटरेस्टिंग इंसाइट या फैक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, फैक्ट का लेकिन सोर्स स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी की ओपिनियन को आपने फैक्ट बना के चेप दिया वहाँ पे, उससे नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। आप कोई सर्वे हुआ हो या सेंसस का डेटा हो या आपका राइट कोई पर्टिकुलर इंडेक्स हो, है ना, या फिर कोई रैंकिंग हो, तो उस हिसाब से उसको आप बना के कर सकते हैं। ठीक है, देन ARC रिपोर्ट्स पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। सी यार, ARC रिपोर्ट्स का ऐसा है कि समरी आती है ARC की, विजन IAS ने शायद बना रखी है, यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है, बट वेरी सेलेक्टिवली। उसको ऐसे पूरा पूरा मत पढ़ना, जो काम का लगे वो एक्सट्रैक्ट करके ऐड कर लेना अपने नोट्स में, जो कि बहुत कम होगा ऑनेस्टली, इट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे पूरा पूरा पढ़ोगे तो जैसे जो BTech और BSc कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड ईयर में, उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है पढ़ने की और इच्छा और आग बहुत ज़्यादा है, वो लोग पढ़ सकते हैं। जिनके पास टाइम कम है वो लोग ना पढ़ें, मैं ये सजेस्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे तो उसका बेनिफिट काफ़ी कम है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, दिस इज़ अबाउट ARC। उसके बाद मोटिवेशन। अच्छा ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड थोड़े से तुम लोगों के सवाल देख लेते हैं। कोई कह रहा है कि एंशिएंट हिस्ट्री कैसे करना है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बता तो दिया, NCERT पुरानी वाली RS शर्मा है शायद, वो उठाओ कर लो, हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री। कैन वी ज्वाइन मेन टेस्ट सीरीज़ इन जयपुर। मेन टेस्ट सीरीज़ आपकी ऑनलाइन होती है, जयपुर पुणे हैदराबाद कहीं से भी करो, वो चेक वहीं होगी जहाँ पे सारे एग्जामिनर्स बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया ईयरबुक। इंडिया ईयरबुक के अंदर कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, शुरुआती कुछ चैप्टर जो इंडिया के बेसिक फैक्ट्स वगैरह है वो पढ़ने हैं आपको, और आगे एग्रीकल्चर वाला पढ़ लेना, रूरल वाला पढ़ लेना, जॉब वाला पढ़ लेना। ठीक है, हर चीज़ नहीं पढ़नी, उसमें काफ़ी सारा डेटा होता है, वो सब नहीं करना है। ठीक है, NCERT में भी कवर हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे की या तो आप समरी पढ़ सकते हो, जिसके अंदर बेसिक जो थॉट प्रोसेस है, जो आइडिया है, जो डिस्कस किया गया है, वो पता चल जाएगा। ठीक है, आंसर राइटिंग का मैंने आपको बता ही दिया है। कूल। उसके बाद इंटरव्यू के लिए मैं एक सेशन और ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। योजना कुरुक्षेत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कह रहा है उसके बारे में कुछ बोलो। यार, योजना कुरुक्षेत्र सरकार की प्रायोरिटीज़ को बताती हैं, तो वो नहीं पढ़ोगे ना अगर, तो आप सिंक में नहीं होगे सरकार के साथ एज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट। देखो, मैगजीन्स के अंदर 50 तरह की स्कीम्स होंगी, आई एम नॉट किडिंग यू, लिटरली। एक क्लाउड अफेयर करके एक वेबसाइट है, इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड यूटिलाइज्ड, इट्स अ वेरी यूजफुल वेबसाइट, यू शुड यूटिलाइज इट। क्लाउड अफेयर के अंदर आपको पूरे पूरे कंपाइलेशन मिल जाएंगे, डिफेंस एक्सरसाइज का कंपाइलेशन मिल गया, अलग अलग रिपोर्ट्स का कंपाइलेशन मिल गया, इंडेक्सेस का कंपाइलेशन मिल गया, तो क्लाउड अफेयर को यूज़ कर लेना। बड़े सीरीज से सवाल आ जाते हैं उसमें से। स्कीम जाओगे तो सारी स्कीम आ जाएंगी सरकार की, जितनी पॉसिबल है 50-60 स्कीम्स आ जाएंगी। लेकिन ये सारी स्कीम्स जो हैं, ये रट लो, जब बन जाओगे सिविल सर्वेंट, गाँव में जाओगे तो पता चलेगा 4-5 स्कीमें होती हैं बस जो चलती हैं। क्या होती हैं? मनरेगा, आवास योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, फसल बीमा। कि थोड़ी थोड़ी ये 4-5 ही हैं, ICDS, आंगनवाड़ी, यही चल रही हैं, देश को यही चला रही हैं। हर 50 स्कीमें नहीं चला रही हैं, 4-5 मेजर स्कीम्स हैं। तो आप देखोगे जो योजना कुरुक्षेत्र है उसके अंदर जो मेजर स्कीम्स हैं, जो मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, उनके बारे में बात होती है, तो वो आपको पता ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मेंस में आप वो 50 स्कीम में से आप 40 स्कीम लिखे हो, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्यों? चेक करने वालों को पता है ये 40 स्कीम जो है पेपर में चल रही है, इनका कोई इतना वो नहीं है। लेकिन अगर आपने 40 स्कीम लिख दी लेकिन आंगनवाड़ी का नाम नहीं लिखा, फसल बीमा का नाम नहीं लिखा, तो वो समझ जाएगा कि बच्चा जो है उसको पूरी जानकारी अभी नहीं है। योजना से अपना दिमाग सिंक करोगे तो क्लैरिटी मिलेगी कि देश कैसे चल रहा है और क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो योजना कुरुक्षेत्र, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु की बुक्स कर सकते हो, टाइम है तो कर लो, कोई खास नहीं है ऐसा, बाकी NCERT से कवर हो जाता है। और टेस्ट सीरीज लगाओ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस आंसर राइटिंग बता दिया है मैंने, सेशन आप वापस सुनिएगा। नोट्स फ्रॉम विजन नाइस करंट नहीं बनाना, नोट्स नहीं बनाना है, उसी को हाईलाइट करो, उसी को रिवाइज करो। नोट्स बनाने बैठ जाओगे पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है वही कर लो, ठीक है।
बीएससी स्टूडेंट थर्ड ईयर कैसे स्टार्ट करूँ, वापस से वीडियो देखना लिख दिया है। स्पीपा के बारे में बिल्कुल सुना है हमने, कर सकते हो, उनका एग्ज़ाम होता है, क्लियर करके वहाँ कर लो तैयारी, बढ़िया है। मृणाल भी लेक्चर देने आता है वहाँ पे, मृणाल सर लेक्चर देने आते हैं, सॉरी। उसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, व्हाट मेक्स टॉपर डिफरेंट फ्रॉम अदर। डिफरेंस क्या होता है यार? ऑनेस्टली देर आर लॉट ऑफ डिजर्विंग पीपल जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। द हार्ड ट्रूथ इज एग्जाम इज अनफेयर, एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, देर आर स्टूडेंट्स जो डिजर्व नहीं करते हैं लेकिन वो सेलेक्ट हो जाते हैं। सी, आपका काम है एग्ज़ाम देना फुल तैयारी से, फुल ऑनेस्टी से, सेलेक्ट हो जाओगे। इट माइट टेक टाइम बट आप हो जाओगे, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि उनकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, वो ऑनेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, उनको वो समझ पा रहे हैं एग्ज़ाम क्या मांग रहा है उस चीज़ को। और एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं है सिविल सर्विस से। एग्ज़ाम बड़ा डिफरेंट चीज़ है, सिविल सर्विस बहुत डिफरेंट। तुम बोलोगे एग्ज़ाम में जो पढ़ लोगे वो पढ़ने के बाद आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अच्छी रैंक लाने के बाद भी देर आर ऑफिसर जो करप्ट हो जाते हैं जाती, जिनको 2 पैसे का वो नहीं होता, रिस्पेक्ट देना नहीं आता है, कुछ चिंता नहीं होती देश की, कचरा कहीं भी फेंक देते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी। देयर इज़ नो लिंक, ठीक है। एग्ज़ाम अपनी जगह, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही टैकल करो, डोंट बी वेरी इमोशनल अबाउट इट। जितना प्रैक्टिकल रहोगे एग्ज़ाम के बारे में, जितना रुथलेस रहोगे उतनी जल्दी क्लियर करोगे। कई सारे लोग एग्ज़ाम को एकदम लाइफ बना लेते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम कुछ कर नहीं सकते। एक फ्रेंड ने मेरा वो यही कह रहा था रिसेंटली, उसकी बात आपको रिपीट करता हूँ। एग्ज़ाम इज़ जस्ट अ मीन्स टू पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस करने के बड़े सारे तरीके होते हैं। पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हो, एनजीओ ज्वाइन कर सकते हो, कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जाके झाड़ू लगा सकते हो अपने घर के आगे, कम से कम घर के आगे नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। दिख रहा है गड्ढे हैं तो अपने सिटी के जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ कंप्लेन करके गड्ढा भरवा सकते हो, लोगों की आसपास लोगों की हेल्प कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली गो एंड हेल्प पुलिस, किसी चीज़ के अंदर यू कैन गो आस्क देम क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं, अपने कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट करवा सकते हैं पुलिस वालों के थ्रू या एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, प्रशासन की हेल्प करवा सकते हो। देयर मेनी वेज, ठीक है। सिविल सर्विसेज इज जस्ट अ मीन्स, इट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिप्रेस यू और अपसेट यू, बट दिस इज़ द रियलिटी। आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट यू। इसको ध्यान में रख के फिर तैयारी करो, ठीक है, और इसको निकालो जितनी जल्दी निकाल सकते हो। ज़्यादा दिल से चिपका के रखोगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके बाद एटलस वर्ल्ड मैप वगैरह कर लो, वर्ल्ड मैप, उसमें कभी कभी सवाल आ जाते हैं। जैसे देखो जो चमकता है ना मैप के अंदर, कोई लेक चमक रहा है, ऐसे वो 3-4 लेक्स हैं अमेरिका के अंदर, यूएस कनाडा बॉर्डर पे, देख लो उनके नाम, साइज़ वाइज कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बॉर्डर वाइज कहाँ पे क्या पड़ते हैं। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने हो तो कैसे करोगे सिमिलरली। बट यू सी यू कैन नॉट प्रेडिक्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अगर वो न्यूज़ में है तो डेफिनेटली चांस है कि आ सकता है, बट कोशिश करो इंडिया के आसपास वाली चीज़ें करने की। इंडिया अफ्रीका, जैसे ग्रोथ कॉरिडोर की बात चल रही थी, तो अफ्रीका के अंदर ज़्यादा चांसेस आने की। जिबूती में बेस बना है, मिलिट्री बेस, तो उसके आसपास का तुम्हें पता होना चाहिए। अब इंडिया ने चाहबार बनवाया है तो पर्शिया के आसपास की ज्योग्राफी तुम्हें पता होनी चाहिए। जो चीज़ न्यूज़ में है उससे रिलेट करके वर्ल्ड को पढ़ो, ठीक है। देयर शुड बी लॉजिक बिहाइंड व्हाट यू रीडिंग। ऐसे रैंडमली सब नहीं पढ़ना है अपन को, क्योंकि एग्जाम में आएगा नहीं। एंड अगेन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, टेस्ट सीरीज विल मेक योर लाइफ ईजी, सो टेस्ट को मत मिस करो, टेस्ट जरूर देते रहो। नाउ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, इसलिए मैं फटाफट आगे के डाउट्स आपके कवर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद भी देखो आपके अगर रह जाते हैं ना तो डाउट्स तो मेरे को डाल देना, मैं जितने रिप्लाई कर सकता हूँ जस्ट DM इट टू मी, आई विल ट्राई एंड डू दैट। अब बार बार लोग पूछ रहे हैं व्हाई डिड आई चूज़ IRS। यार आई डिड नॉट चूज़ IRS, मेरी रैंक पे मुझे IRS मिला है। माई प्रेफरेंस वॉज IAS, IFS, IPS, IRS। तो वैकेंसी और रैंक के हिसाब से आपको एक सर्विस अलॉट होती है। देयर आर अराउंड 26 सर्विसेज। IRS मेरी 4th चॉइस थी तो उस पर वो मुझे मिल गया, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज़ व्हाट। अब मेरे को ऐसा है कि शायद 1 घंटे का होने वाला है तो ये बंद होने वाला है। सो आई एम गोना जस्ट क्लोज इट, सेव इट, एंड देन विल क्विकली डू अनदर लाइव सेशन। 10-15 मिनट और खींचेंगे, बाकी सारे डाउट्स भी आपके निपटा दूंगा। आई एम क्लोजिंग दिस वन, ओके।